Now, in the last class, what we talked about were the or was the gaseous exchange pathway, and we talked about the conductive pathway. What do we mean by the word conductive pathway? कि भाई हमारे पास जो gases, whatever the air that we're breathing in, what parts of the gaseous exchange system is it moving through. Then we talked about finally once it reaches the alveolar sacs and the alveoli, which are considered as the absorptive pathway, it is taken into, let's say, the blood, or the gaseous exchange between the blood and the lungs occur. Now, out of all of them, what was important or what is important for us? The nasal cavities, the trachea and the bronchi, and the alveolar sacs and the alveoli. Now, so when we talked about the nasal cavities, हम लोगों ने क्या बात करी थी कि भाई हमारे पास जो nasal cavities होती है ना, they act as air conditioners, right? What do we mean by the word air conditioners? That they bring the air to the liking of the body. How do they do that? They warm the air, they filter the air, and they humidify the air. Why do we need to filter the air? Because I don't want any large particles, such as dust, as pollen, even the small particles. I don't want any pathogens to go inside my gaseous exchange system. uh, it warms the air so that diffusion can occur at a higher rate. If the air is not warmed, if you're going to breathe in cold air, the temperature is going to decrease. The lower the temperature, the lower the rate of diffusion. And obviously, the enzymes that are working in the lungs are also being affected, because again, the lower the temperature, the lower the rate of enzyme reactions. uh, उसके अलावा it also humidifies the air. What do we mean by humidification of air? कि it if we're going to breathe in dry air, what's going to happen? The what we call as let's say the lining of the lungs, they are going to what they are going to get dried out, right? So we don't want any of these things to happen. Exactly, Hassan. All right, so since we don't want any of these things to happen, uh, that or the nasal cavities act as air conditioners, right? Now, moving on to the next part. The next part that we need to talk about, or that's on our list, are both. So I'm just going to move this up a notch. Okay, are both the trachea and the bronchi. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा. Both the trachea and the bronchi are considered to be organs. Acha, why are they considered to be organs? Is because they're made up of more than one type of tissue. ठीक है जी. Trachea and bronchi, they're made up of more than one type of what? Tissue. तो ये essentially क्या होगा, इनका नाम ये क्या होगा? They will be considered as organs. यहां तक किसी को कोई मसला? अब देखो, before we talk about any of both the trachea and the bronchi, अगर हम इनका एक स्ट्रक्चर बनाए, तो मैंने कहा कि मेरे पास, let's say this is the trachea. It's going down like this all the way into the chest from our, let's say, from our neck. ठीक है. फिर ये जाके divide कर जाता है. Once it goes into our chest, it divides into two smaller tubes, right? Now those tubes that it divides into, that divide into further smaller tubes that open up into the lungs, they are called as bronchi. राइट. तो हमारे पास ये क्या हो गया? दिस राइट हियर इज द विंड पाइप, द ट्रैकिया. ये एक सिंगल ब्रोंकस है. दो हो जाएंगी तो हमारे पास क्या कहलाएंगी? ब्रोंकाई. हसन, आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट द एल्वियोलस. मैम नथिंग मच. वी जस्ट स्टार्टेड बेटे. टाइम पर आया करो. अच्छा. ओके. नाउ, अब होता हमारे पास क्या है कि
अगर हम लोग ट्रैकिया को देखें ना, तो ट्रैकिया बेसिकली हैज दी सी शेप स्ट्रक्चर्स। ना ये जो रिजेस होती है ना हमारे पास, ये जो रिजेस होती हैं, तो यू कैन इवन फील देम इफ यू टच योर नेक। अगर नेक टच करोगे ना तो ये रिजेस नजर आ रही होंगी। इस तरीके से हमारे पास सी शेप रिजेस होती है। दीज आर बेसिकली व्हाट वी कॉल एज कार्टिलेजेस। तो हमारे पास ट्रैकिया में कैसी कार्टिलेजेस होती हैं, दे इनका काम क्या है, इन कार्टिलेज का भी बताते हैं। दीज आर सी शेप्ड कार्टिलेज, राइट। ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेजेस होती हैं, लेकिन ब्रोंकाई के अंदर क्योंकि क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर कम जाता है ना, देखो ट्रैके का डायमीटर बड़ा है, इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर ज़्यादा जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि भाई हम ब्रोंकाई को ट्रैके को दो में डिवाइड कर रहे हैं, सो each of the bronchi is carrying half the volume of air than trachea is। ठीक है। तो इसके अंदर सी शेप कार्टिलेजेस नहीं होती, कार्टिलेजेस होती हैं लेकिन सी शेप नहीं होती। कैसी कार्टिलेजेस होती हैं, पैचेस होते हैं कार्टिलेज के। सो द bronchi have पैचेस ऑफ कार्टिलेज। हम लोग यहाँ इसको लेबल कर देते हैं कि भाई इसमें कार्टिलेज कैसी होती है, पैचेस होते हैं। दिस इज समथिंग दैट यूजुअली कम्स इन आवर एमसीक्यूज। ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट यूजुअली कम्स इन आवर एमसीक्यूज। ऑलराइट, मैं बता रहा हूँ आमना बेटे, आई एम कमिंग देयर। सो अगेन, अभी हम लोगों ने बात करी ट्रैकिया इज एन ऑर्गन। ठीक है, इट हैज 4 layers। अब for four different types of tissues. So Amna, we're coming to your question. What is trachea made up of? It's basically made up of 4 different types of tissues. अगर मैं इसका एक टॉप व्यू बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाउ द ट्रैकिया इज गोइंग टू लुक इफ यू आर गोइंग टू लुक एट द टॉप। सो राइट हियर बिल्कुल बीच के अंदर हमारे पास इसका लूमेन है। लूमेन इज एनी सर्कुलर स्पेस थ्रू विच फ्लूइड्स कैन पास थ्रू। हमारे पास इस लूमेन में क्या पास हो रहा होगा, इस लूमेन के अंदर एयर पास हो रही होगी। एयर इज ऑल्सो फ्लूइड, राइट। ठीक है। अब इसके अगेन मैं तो एक सिंगल लाइन बना रहा हूं, लेकिन ट्रैकिया इज अ थिक स्ट्रक्चर। अब हम वट एवर द टिश्यूज आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट, वी गोइंग टू टॉक अबाउट देम फ्रॉम आउट इनसाइड टुवर्ड्स द आउटसाइड। कि अंदर कौन सा वाला टिश्यू है, फिर कौन सा टिश्यू आएगा, फिर कौन सा टिश्यू आएगा, फिर कौन सा टिश्यू आएगा। ठीक है। मैं इन टिश्यूज के नाम भी लिख रहा हूं, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। सो द फर्स्ट टिश्यू दैट वी हैव is called as mucosa. Again, you don't have to remember the name, you don't have to remember the name, but you have to remember कि उसमें कौन से सेल्स है। ठीक है। म्यूकोसा के अंदर कैसे सेल्स होते हैं, दे आर कॉलम लाइक, राइट। देर कॉलम लाइक का मतलब दे रेक्टेंगुलर, बेसिकली इस तरीके से सेल्स होते हैं, इस तरीके से, राइट। अगेन, दे आर नॉट स्क्वीज्ड, ये स्क्विश नहीं हुए हुए, और ये लेकिन ये एपिथेलियल सेल्स हैं। अब मुझे बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ, यू नो इन द ब्लड वेसल्स हम लोग जब स्क्विश सेल्स के बारे में बात कर रहे थे, डज एनीवन रिमेंबर हम लोग स्क्विश सेल्स को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दोस सेल्स दैट आर स्क्विश्ड? एंडोथेलियल सेल्स। कौन से वाले एंडोथेलियल सेल्स पढ़े थे हम लोगों ने शाम? स्क्विश्ड वाले कौन से एपिथेलियल सेल थे? ये एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्क्वेमस, राइट। वेरी गुड मुश्तबा, वेरी गुड। हमें सर, अच्छा हमें ये कैसे पता? इफ यू गोइंग टू गो बैक, किधर गया हमारा ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स, और इफ़ यू गो बैक ऑल द वे इनटू द ब्लड वेसल्स, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि स्क्विश सेल्स जो हमारे पास होते हैं वो स्क्वेमस सेल्स होते हैं। वेरी गुड मुश्तबा, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो स्क्विश्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं उन्हें भी हम लोग स्क्वेमस एपिथेलियल सेल कहेंगे। ठीक है। लेकिन जो रेक्टेंगुलर होते हैं उन्हें हम लोग स्क्वेमस नहीं कहते, उसे हम लोग कहते हैं कॉलमनार, राइट। तो देखो, सेल एपिथेलियल सेल है, इट्स गोइंग टू फॉर्म अ वन सेल थिक लेयर। हमें क्या पता होना चाहिए कि उसका शेप कैसा है मेरे बच्चों। ठीक है। तो हमने कहा यहाँ कौन से वाले सेल्स होते हैं म्यूकोसा के अंदर, दे आर कॉलम लाइक, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स विद सीलिया।
तो हम लोगों ने कह दिया द कॉलम लाइक सीलिएटेड, इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं। कॉलम लाइक कॉलमनार सीलिएटेड, कौन से वाले सेल्स होते हैं? एपिथेलियल सेल्स। मैं फिर बता रहा हूं, एंडोथेलियल सेल्स सिर्फ ब्लड वेसल्स में होते हैं, बाकी जगहों के ऊपर जो वन सेल थिक सेल्स होते हैं वो हमारे पास एपिथेलियल होता है। एंडोथेलियल आर ओनली इन द ब्लड वेसल्स। नाउ कम बैक हियर, इसके नीचे डायरेक्टली बीनीथ द म्यूकोसा हमारे पास एक और लेयर आती है। लेट मी गिव सम स्पेस हियर। हमारे पास एक और लेयर आती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नाउ टेल मी समथिंग, what do we call those ships that sail under the, or that don't sail but that are under the water? So those ships, submarines. Very good, very good. ठीक है, submarines. What do we call that railway system that is under the ground? You know, we also play this game. कौन सा वाला surfer है? Subway. Very good. Right, subway. तो देखो, सब का मतलब होता है नीचे, पानी के नीचे सबमरीन, राइट, रास्तों के नीचे सबवे। तो इसी तरीके से म्यूकोसा की जो नीचे लेयर होगी वो कौन सी वाली होगी? एनी गेसेस? सबवे सर्फर सेल, हाँ हाँ, सब म्यूकोसा। वेरी गुड गाइस। ये बिल्कुल नीचे तो नहीं होती है, थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। अच्छा, सब म्यूकोसा के अंदर, सब म्यूकोसा से के अंदर हमारे पास कौन से वाले सेल्स होते हैं? गॉबलेट सेल्स। और गॉबलेट सेल्स एक टिश्यू बनाते हैं, ग्लैंड बनाते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूकस ग्लैंड। वेरी गुड। सो अगर हम लोग यहाँ लिखें कि भाई गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं, गॉबलेट सेल्स आर म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स। ऑलराइट, तो वाटर गॉबलेट सेल्स, नहीं बेटे, डस्ट को ट्रैप नहीं करता। वेरी गुड कुमैल, वेरी गुड बच्चे, बरीरा बेटे। देखो मिप्साम, वो डस्ट को ट्रैप नहीं करता। डस्ट को कौन ट्रैप कर रहा था? डस्ट को ट्रैप कर रहा था हमारी नोज। वो चीज़ें जो 5 माइक्रोमीटर से छोटी होंगी ना बेटे, उनको कौन ट्रैप करेगा? उनको म्यूकस ट्रैप करेगा। म्यूकस क्या होता है? बेसिकली हम उर्दू में जिसे कहते हैं बलगम। इट्स अ स्टिकी सब्सटेंस, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है? सो अगेन विल कम टू दैट, डोंट वरी। इसके बारे में बात करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसके नीचे से आई एम गोइंग टू रिमूव दीज सेल्स। वी डोंट नीड यू एनी मोर। ओके, कम बैक हियर। So the third layer that we have is called as the layer of cartilage. Cartilage के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि ये cartilage कहाँ कैसी होती है? We have a C-shaped cartilage in trachea, patches where in bronchi। दोनों के अंदर ना, ब्रोंकस और ट्रैकिया के अंदर दोनों टिश्यूज है। नहीं मेरा बेटा, नो। सलाइवा इज प्रोड्यूस बाय सेलिवरी ग्लैंड्स, जो माउथ में होते हैं। इट्स नॉट प्रोड्यूस बाय द टंग। Saliva is not sticky. Very good. Very good. Saliva isn't sticky. While mucus is sticky. ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सलाइवा में एमिलेस होता है, म्यूकस में एमिलेस नहीं होता। खैर, चौथी चीज हमारे पास क्या होती है? इट्स अ लेयर ऑफ कौन से वाले मसल्स? स्मूथ मसल्स। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू स्मूथ मसल्स डू? कैसे वाले? चलो वो तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं ना। कैसे क्या? व्हाट डू दिस यू नो, what type of muscles, as in के we discuss two types of muscles, right? Voluntary and involuntary। तो स्मूथ मसल्स कौन से वाले मसल्स होते हैं? वेरी गुड बेबसाम, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। ये खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट होंगे, खुद ब खुद रिलैक्स करेंगे। वो तो मुश्तबा देर एग्जाम्पल्स। what kind of muscles are the smooth muscles? They are involuntary muscles। अब इसको देखो जल्दी से, हम थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्मूथ मसल एंड कार्टिलेज फर्स्ट। दे आर नॉट दैट वेरी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमेशा नहीं बेटे, हमेशा नहीं साहब।
हमेशा पेरिसेल्स में इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा, अब इसको देखिएगा, हमने ब्लड वेसल्स में भी देखा था ना, वो ब्लड वेसल को डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं, यहाँ भी ऐसा होगा। होता क्या है, स्मूथ मसल्स इन द ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई, दे अलाउ डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द लूमेन। कहने का मकसद क्या हुआ मेरे बच्चों, होता क्या है हमारे पास, होता क्या, इसको देखिएगा। लेट्स से मेरे पास ये ट्रैकिया है ना, फॉर एग्जांपल, while I am at rest, ये जो मेरे पास ट्रैकिया है उसका डायमीटर इतना सा है, ठीक है। मुझे ज़्यादा एयर की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट वांट दैट मच एयर इनसाइड बिकॉज अगेन आई एम एट रेस्ट, ठीक है। मेरी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं भागना शुरू कर दूंगा, द रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन माई बॉडी विल इंक्रीज। बिकॉज द रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन माई बॉडी हैव इंक्रीज्ड, वुड आई नीड मोर ऑक्सीजन? यस आई वुड। उसके लिए मेरा ट्रैकिया क्या हो जाएगा, डायलेट कर जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ट्रैकिया क्या 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 कर जाएगा, डायलेट कर जाएगा, राइट। So that more air can enter and hence more oxygen can enter into the lungs. आई के अंदर भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं बेटे। प्यूपल के साइज को कॉन्स्टेंट डायलेट कर रहे होते हैं। सो देखो देखो, कहने का मकसद क्या है, इफ आई एम गोइंग टू बी एट रेस्ट, अगर मेरी एयर की रिक्वायरमेंट कम होगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर एयर की या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगे तो ये डायलेट कर जाएगा, अलाउिंग मोर एयर टू गेट इन, ठीक है। सो इट डायलेट्स, कब डायलेशन कब होती है, ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्टिविटी, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन कब होती है, एट रेस्ट। ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? ऑल राइट, नाउ, अच्छा जी, अब अगर हम लोग देखें, नाउ व्हेन वी इफ यू टॉक अबाउट दीज कार्टिलेजेस, ये कार्टिलेजेस क्या करती है, दीज कार्टिलेजेस दे बेसिकली प्रिवेंट कोलैप्स, राइट। कोलैप्स क्यों, ड्यू टू इंजरी और changes in pressure. Now let me give an example. Let me give an example. Uh, if you have kids, right? Like my youngest niece, she's like 1. तो बच्चे बताऊँ क्या करते हैं, लाइक रैंडमली यू बी प्लेइंग विद देम एंड बैम दे जस्ट हिट यू आउट ऑफ नोवेयर, यू वोंट बी एक्सपेक्टिंग इट, वो अचानक से हाथ मार देंगे। सो लेट्स से you're playing with a kid, right, a 1 year old or a 2 year old, and they suddenly hit you right on your neck. What's gonna happen? इंजरी हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या तुम्हारा ट्रैकिया कोलैप्स हो जाएगा, राइट? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको प्रिवेंट कौन कर रहा है कोलैप्स होने से, ये कार्टिलेजेस। ऑल राइट। अच्छा, दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से भाई वी आई वाज राइडिंग अ बाइसाइकिल, आई डिड नॉट सी अ ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड इट हिट मी राइट ऑन माई नेक। डू आई वांट माई द ट्रैकियर टू कोलैप्स? नो, ठीक है। दूसरी बात, चेंजेस इन एयर प्रेशर। सो लेट्स टॉक अबाउट अ जूस का डब्बा। So what happens is कि जब भी, if we have a juice का डब्बा and if we have a straw and if we drink all the juice and Capri Sun ले लो, कुछ भी ले लो, so if you once you drink all the juice and then you try to suck all the air out, हम लोग क्या देखते हैं कि जो जूस का डब्बा होता है ना, उसमें जब एयर निकल जाती है, उसका प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो वॉल्स होती है ना, वो अंदर की तरफ क्या होने लगती हैं, कोलैप्स होने लगती हैं। द जूस का डब्बा स्टार्ट्स क्रम्पलिंग अप। व्हाई? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, वो इस जूस के डब्बे को कोलैप्स करवा देगा। सिमिलरली,
every time we are breathing out, every time we are breathing out, what happens is हमारा जो ट्रेकिया है उसके अंदर प्रेशर कम हो रहा है। देखो, when we are breathing in, a lot of air is coming, तो air pressure बढ़ गया। But when I'm exhaling out, the air pressure is dropping. There is a chance कि atmospheric pressure उसको collapse कर दे, just like the juice का डब्बा। तो उसको कौन प्रिवेंट करता है कोलैप्स होने से? कार्टिलेजेस, सी शेप्ड कार्टिलेज इन द ट्रैकिया एंड पैचेस ऑफ कार्टिलेज वेयर इन द ब्रोंकस। कि अगर ब्रोंकस के अंदर ही प्रेशर कम हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो कार्टिलेज है उसको कोलैप्स होने से रोकेंगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? जी मैं साहब। बेटे एक तो स्क्वेमस एपिथेलियल था और ये कॉलम वाला कॉलमनार था ना, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल। अब इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग क्या देखते हैं? नाउ दैट व्हेन वी टॉक अबाउट the first two layers, I'm only going to draw the first two layers and we're going to talk about them in detail. हमारे पास जो पहली दो लेयर्स होती है ना, वो कौन से वाले सेल्स होते हैं मेरे बच्चा बच्चा लोग? दे आर एपिथेलियल सेल्स, राइट? लेकिन कैसे वाले होते हैं? कॉलम लाइक होते हैं और उनमें सीलिया होता है। सो लेट्स रिमाइंड आवर सेल्स अबाउट द सीलिया। हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था। व्हाट्स अ सीलिया? सीलिया आर हेयर लाइक एक्सटेंशंस दैट कॉन्ट्रैक्ट इन अ स्वीपिंग मोशन, झाड़ू की तरह। वो झाड़ू की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, राइट? अब हमारे पास जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो इस तरीके से रेक्टेंगुलर होते हैं, हेंस वी कॉल देम कॉलम लाइक, राइट? एग्जैक्टली लाइक अ ब्रूम, लाइक अ झाड़ू। और ये साइड बाय साइड कुछ ऐसे लगे हुए होते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक और बना लेते हैं। इनके साथ चलो एक बस, आई थिंक टू आर इनफ फर्स्ट। इनके साथ साथ हमारे पास कौन से वाले सेल्स होते हैं? थोड़ा सा नीचे हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं गॉबलेट सेल्स। डज एनीवन नो व्हाट अ गॉबलेट इज? व्हाट्स अ गॉबलेट? गॉबलेट इज अ टाइप ऑफ अ कप। नो नो, वो तो गॉबलेट सेल्स होते हैं। गॉबलेट क्या होता है? गॉबलेट इज अ टाइप ऑफ अ कप। ठीक है। जिससे पुराने जमाने में किंग्स एंड क्वींस वो, यू नो, दोज वाइन शेप्ड ग्लासेस that they used to that are made up of gold and silver, those are called as goblets, right? Tanisha, that's you, right? Goblet of fire, right? Harry Potter and the Goblet of Fire, yes, exactly like that. ठीक है। so हमारे पास जो goblet cells होते हैं, they're shaped like that cup, right? They're shaped like a wine glass. That's why we call them a goblet cell. So let's mark them कि भाई ये हमारे पास कौन सा वाला सेल है? ये गॉबलेट सेल है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये सीलिएटेड सेल्स होते हैं ना, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट देम? इनके अंदर से सीलिया आ रहा होता है, राइट? द सीलिया बेसिकली एक्सटेंड्स आउट लाइक दिस, राइट? और ये कैसे मूव कर रहा होता है? और ये स्वीपिंग मोशन के अंदर मूव कर रहा होता है, राइट? ओके। नाउ नाउ अब हमारे पास क्या होता है? अब हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास गॉबलेट सेल्स होते हैं ना, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस अ स्टिकी सब्सटेंस that we call as mucus. All right, that we call as what? Mucus. अब what's the point of having mucus? अब ये होता क्या है? ये इस तरीके से यहाँ से इनके पास एक वेसिकल आता है, इस वेसिकल से म्यूकस रिलीज हो रहा होता है। ठीक है। अब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस म्यूकस? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस म्यूकस? This mucus traps anything that
is smaller than 5 micrometers. That so looks like you. And I'm not even kidding. I can see the difference between the profile pic and the picture of a goblin that you just shared. Ah, that sense of superiority of being a teacher. Ha ha. क्या सिर्फ वहाँ नहीं होता बेटा, नर्व्स में नहीं होता बच्चा. ओके, मूविंग ऑन. सो देखो अब हो क्या रहा था. हमारे जो नेजल हेयर्स थे ना, द हेयर्स इन द नोज along with the mucus there, they were preventing any particle that was 5 micrometers or larger. They were not preventing bacteria, viruses, pollen. ठीक है. अच्छा जी. Now, personally, I don't want any bacteria, any virus, any let's say fungal spore to get into my gaseous exchange system. So what happens is, जो भी पैथोजेंस या कोई भी चीज़ जो 5 माइक्रोमीटर छोटी होती है, उसको कौन ट्रैप कर लेता है, उसको म्यूकस ट्रैप कर लेता है, स्टिकी है ना. सो अगेन तो हम लोगों ने कहा कि भाई दिस इज द म्यूकस, और ये क्या करता है, इट्स अ स्टिकी सब्सटेंस that traps unwanted particles, which should be smaller than what, 5 micrometers. अब अच्छा उसे ट्रैप कर लिया, अब क्या करें भाई इसका. अब this mucus would be moved. Now, the very same mucus would be swept upwards by the action of the cilia. अभी cilia क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ स्वीप करता रहेगा झाड़ू की तरह, एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर. ये बात याद नहीं रखनी हमें कि उसका रेट क्या है, लेकिन it would keep on sweeping it upwards. It would keep on sweeping it upwards. राइट. और ये कब तक स्वीप होता रहेगा, जब तक ये कहाँ नहीं पहुंच जाता, जब तक यही वाला म्यूकस दैट इज फुल ऑफ पैथोजेंस doesn't reach the, or reaches the what, it reaches the pharynx, halak. Right. So where does the mucus ultimately ends up? All the way towards the pharynx. अब जब ये pharynx में चले जाएगा, अब जब ये pharynx में चले जाएगा, so what happens is कि we have two options कि भाई what are we supposed to do with it. We can either expel it out if it's in a larger amount. अच्छा, large amount जी mucus की excess production कब होती है, when you are suffering from some sort of respiratory tract infection. राइट, फ्लू हो, कफ हो, कोई ना कोई भाई, जो हमारे हम लोग कहते हैं भाई लंग्स में बीमारी होगी ना, सो ये तुम्हारी बॉडी का अपना नेचुरल मैकेनिज्म होगा कि वो क्या कर देगी, वो म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा देगी. जब म्यूकस प्रोडक्शन हमारे पास बढ़ जाएगी, सो वट एवर द pathogens that are present there or that we would be inhaling would be going up to the pharynx. ठीक है. वरना every day we ingest 1 to 1.5 liters of mucus. हमें पता भी नहीं लगता. हम 1 से 1.5 लीटर म्यूकस वी कीप ऑन, हम उर्दू में अगर कहें तो हम लोग निगल जाते हैं. वंस वी इंजेस्ट दिस म्यूकस, वेयर डज इट गो, इट गोज इनटू द स्टमक. व्हाट इज प्रेजेंट इन द स्टमक. स्टमक क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पहले मुझे बताओ. व्हाट, एसिड, वेरी गुड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. So once we ingest the mucus, what happens is the pathogens inside the mucus are killed by the hydrochloric acid in the stomach. Make sense? अच्छा. अब मुश्तबा जो नाक से निकलने वाला पानी होता है वो भी म्यूकस होता है, दैट स्टिकी थिंग दैट कम्स आउट, राइट. आ, हमारे नोज के अंदर भी म्यूकस ग्लैंड्स हैं. तो क्योंकि सर्दियों में हवा ड्राई होती है, राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, तो एज अ रिस्पॉन्स बॉडी म्यूकस प्रोडक्शन क्या करती है, उसको बढ़ा देती है. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस. यहाँ तक कोई मसला मेरे बच्चों.
Very good. Very good. All right. All right. Uh, it doesn't matter, Mohib, whether you spit it, whether you swallow it. Again, doesn't matter. ठीक है जी. Now, अब आगे बढ़ते हम लोग. Now let's move ahead. So देखो again, if you want, let's write it down as well. अगर हम लोग यहाँ इसको लिख लें, हमने कहा कि mucus traps unwanted particles and the cilia beats या फिर contracts in a कैसा motion? In a sweeping motion to move the mucus upwards towards the pharynx, upwards towards the pharynx. Okay, let me move this down. ठीक है, upwards towards the pharynx. Uh, so it could be expelled or ingested. And again, ingest होने के बाद क्या होगा? There's something that again, एक common sense वाली बात है. It would be killed by the or it would be destroyed by, not killed, but the pathogens are going to be destroyed by the what? The HCl in the stomach. All right? यहाँ तक कोई मसला? So इस तरीके से हमारे पास ट्रैकिया और ब्रोंकाई. देखो ये ब्रोंकाई के अंदर भी है. Just because I'm talking about trachea again and again, bronchi भी इस चीज में included है, right? So that's it for trachea and the bronchi.